Here it is. Okay, cool. ये अपन ने some terms related to geometry. We will start with the third topic, that is the some terms related to geometry. Theoretical chapter है बेटा, theoretical chapter है, थोड़ी सी प्योर थ्योरी वाली चीजें जो अपन को समझनी पड़ेगी. These things are more or less अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. we have to understand this. Okay, fine, downloaded. चलो, अब अपन आज पढ़ेंगे some terms related to geometry. क्या terms है related to geometry that we will just see. First thing is point. Can you make playlist in your channel of class 8th, 9th and 10th? Okay, यार मेरे को playlist बनाना नहीं आता, प्लीज कोई मुझे सिखा देना. सर क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है कि हमारा 9th का कौन सा और वैसे 10th या वो का कौन सा. एक मिनट just a minute, हाँ just. So now we will be doing some terms related to geometry. Attendance जिसको लेना वो please ले लेना कभी भी. I am not concerned about attendance right now. So now we will be doing some terms related to geometry. The first term is point. What is a point? Point is an exact location. A point is an exact location. A fine dot, एक fine dot भी जो है वो point को represent करता है. जैसे कि ये क्या हो गया? Sir, we have done this. Yeah, we have done this. We will just quickly recapitulate. A, B, P, Q, R. Okay, sir. Point को अपन capital letter से लिखते हैं. Next is line segment. Line segment is straight path between two points. दो points हैं, एक A हो गया, एक B हो गया. इन दोनों के बीच का straight path, that is a line segment. This path will not be a line segment, क्योंकि this is not a straight path. This will not be a line segment because this is not a straight path. The straight path between two points is called a line segment. Next is line. अगर मैं इस line segment को infinitely दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं, infinitely, देखो यहां से infinitely दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं, so it will become a line. अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को infinitely दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं तो it will become a line. Next is interior of a line segment. Interior of a line segment क्या होता है बेटा? Interior of a line segment is एक कोई point है, it is called in interior of a line segment if it lies between the 2 points, if it lies between the two end points of the line segment. जैसे ये line segment है PQ, अब ये point R. Bubble like structure is coming on our screen. So you are not liking that bubble? Is it disturbing? No sir. बीच में आ रहा है. चलो ठीक है, हटा देते हैं. No sir, it is not disturbing. चलो हटा देते हैं. सर चलो सर स्क्रीन ब्लर दिखाई दे, मैं रीजॉइन करूं? हाँ रीजॉइन कर लो, आपकी आवाज भी कट रही है, आप रीजॉइन कर लो. देखो, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ए पॉइंट R is called an interior point of a line segment if R lies between P and Q. अगर ये R जो है वो P और Q के बीच में लाई करेगा, then this R will called as an interior of this line, a point in the interior of this line segment. ठीक है. Next is congruency of line segment. दो लाइन सेगमेंट AB और CD, इनको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है if we can trace one copy of अगर हम एक लाइन सेगमेंट को दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर रख सके, then this is called congruency. एक सेकंड. ओके. सो दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट इस तब कहा जाता है जब दोनों की लेंथ इक्वल हो. दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाता है जब दोनों की लेंथ. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. अब मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए. सही है सर. नहीं सर.
ठीक है, दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाता है जब दोनों की लेंथ इक्वल हो। अगर लेंथ इक्वल नहीं होगी तो वो दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे? फिर से वो आ गया। चलो कल से नहीं आएगा। दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, देन वी कैन से दैट द टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस केस में अपन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। दिस इज जस्ट ए रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस। ठीक है, अब आता है सम टर्म्स। ये रे अपन ने पढ़ लिया था, अपोजिट रेज अपन ने पढ़ लिया था। दो रेज की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो इट इज कॉल्ड ए रे, अपोजिट रे। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब टू अपोजिट रेज लाइन बनाती है ना? हाँ, दो अपोजिट रेज अगर दोनों की इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए लाइन। दो अपोजिट रेज अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए लाइन। ठीक है, अगर दो अपोजिट रेज का स्टार्टिंग पॉइंट इफ इट इज सेम, देन इट इज कॉल्ड एज ए लाइन। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है सर? कॉन्करेंट लाइन वो होती है, थ्री और मोर लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ देयर इज ए पॉइंट व्हिच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। तीन और तीन से ज्यादा लाइंस को अपन कॉन्करेंट बोलते हैं अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इन तीनों लाइंस पे लाई करे। ये अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों लाइंस पे लाई करता है तो इट इज कॉल्ड एज ए concurrent lines. ठीक है, if three or more lines are said to be concurrent if they are passing through a same point. Line segment has a finite number of points. Finite line segment has finite number of points, not infinite. ठीक है, finite number of points because line segment की एक fixed length होती है और हर लेंथ को आप एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हो। 5 होगी, 5000 होगी, 5 लाख होगी, आई डोंट नो, बट लाइन सेगमेंट विल हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज intersecting lines. Intersecting lines are, two lines are called intersecting lines if they have a common point and this common point is called the point of intersection. दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी कहा जाता है अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। These lines are called point of interest, parallel lines. Now I don't agree to this definition fully because एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। Can I say yes, I should agree to this definition fully? क्योंकि मेरे दिमाग में एक ये डाउट आया था कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है नहीं। नाउ आर दीज टू लाइंस, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये लाइन है, एक लाइन है L, एक लाइन है M, इन दोनों लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो क्या ये दोनों लाइन ही अपने लाइन Yes, सेगमेंट sir. सर लाइन को एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं ना। लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी। समझ गया सर, मैं एक्सटेंड समझ करने के गया बाद हमें एक पॉइंट ऑफ के इंटरसेक्शन मिल जाए। मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया ठीक है, मैं समझ गया भाई कि मैं आप लोगों को सर कुछ एक गलत ऐसा कंडीशन रख सकते हैं कि अगर क्या? दो लाइन पैरेलल नहीं है तो हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। हाँ, दो लाइन नहीं, दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी। सोचने दो यार। हाँ, दो सर दो सही लाइन, है। हाँ सर, सही है, सही है। सही है, सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये दोनों लाइन किसी ना पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी। किसी ना किसी पॉइंट पे हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो दोनों लाइंस किसी ना किसी पॉइंट पे हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। तो दो लाइंस अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो दैट मींस वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को थोड़ा मिसलीड करने की कोशिश की थी, लेकिन द वे यू क्रिएटेड फिश मार्केट तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं आप लोगों को मिसलीड तो नहीं कर सकता। Number of points in the line 5 centimeter, that means that hey ladka, number of points will become not defined because point has no dimension. See, just don't go into detail of this because I told you in the first class that the point is itself not defined.
ये जो पॉइंट की जो चीज है that is itself not defined, so we can't go into that much detail of it कि पॉइंट क्या हुआ. अब लाइन से मेरे हिसाब से लाइन सेगमेंट हैज फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट हैज फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स बिकॉज लाइंस, अगर कई सारे पॉइंट्स को अगर आप एक साथ ज्वाइन कर देते हो, वो नंबर बहुत ज्यादा होगा. दैट विल बी क्लोज टू समथिंग समथिंग इंफिनिटी, क्योंकि पॉइंट जो है इट इज अ वेरी फाइन डॉट. अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन लेते हो या 1 mm की भी लाइन लेते हो, तो वो पॉइंट जो है डेट विल बी ए फाइन डॉट. आप कितने पॉइंट्स होंगे वो आप नहीं बता सकते. फॉर एग्जाम्पल लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग. ये जो मेरा फिंगर का पार्ट दिख रहा है, हमें, मुझे ज्यादा बायोलॉजी तो पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल्स से बनते हैं. हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेल्स से बनते हैं. तो अब इस फिंगर का ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है. अब इसमें कितने सेल्स होंगे, इसमें कितने सेल्स होंगे बताओ? 100, 200, 500, 1000. सेल इज ए वेरी स्मॉल थिंग दैट यू कांट सी बाय नेकेड आई. कुछ सेल्स देख सकते हैं, कुछ सेल्स को तो आप देख नहीं सकते, यू कांट सी बाय द नेकेड आई. तो जब आप सेल को देख ही नहीं सकते, तो इस फिंगर के इस पार्ट में कितने सेल होंगे ये तो आप बता नहीं सकते ना. So that is why I'm saying कि point is something that is very fine. It can be as fine as possible. तो अब आप इस लॉजिक से ये बोल सकते हो कि यस, अगर पॉइंट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, so it will, so a line will, a 5 centimeter line will have an infinite, एक मिनट, a 5 centimeter line will have an infinite number of points. A line will have a infinite number of points. Fine, I agree. A 5 centimeter will have a not defined number of points. But again, the thing is, line segment भी तो point से ही बनता है ना बेटा. जब आप कई सारे points को, suppose करो एक point यहाँ पे है, एक point यहाँ पे है, एक point यहाँ पे, एक point यहाँ पे, उसके बहुत ही close एक दूसरा point लगा दिया, उसके बहुत close एक दूसरा point लगा दिया. ऐसे आप collection बनाते जाओगे. After some time, you will get a line. अब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन बनाओगे तो आपको लाइन तो मिलेगी ही ना. लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक दैट आल्सो. लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड लाइक दैट आल्सो. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यस, पॉइंट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ ज्योमेट्री. डेफिनेटली पॉइंट इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ ज्योमेट्री. चलो अब अपन चलते हैं. द लास्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स. अब ये जो एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड, well, we can't define point. We can't define point. Point is something that is not defined. अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूक्लिड. अब यूक्लिड महाराज ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. पोस्टुलेट्स मतलब ऐसी चीजें जिनका कोई प्रूफ नहीं है. we're not at all concerned about it. axiom पढ़ लिया सर हमने. Axiom को ही बेटा postulate. Axiom and postulates are basically identical thing. कहीं पे somewhere we use the word axiom, somewhere we use the word postulate. लेकिन सर हमारे स्कूल में बोला है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं. क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. Postulates are specifically for geometry. Postulates are specifically for geometry, and axioms are not specifically for geometry. But basically both the things are same only. ये दोनों चीजें क्या हैं? ये दोनों, एक मिनट, कई बुक्स में सर ऐसा दिया हुआ है. ये दोनों चीजें वो चीजें हैं जो कि प्रूफ नहीं की जा सकती हैं. ये दोनों चीजें वो चीजें जो कि प्रूफ नहीं की जा सकती है. अब इसी बुक में एक जगह अपन ने एक्सियम वर्ड पढ़ा था, एक जगह अपन ने पोस्टुलेट वर्ड पढ़ा है. ये जहां अपना जो मटेरियल है वहां पे एक जगह हमने एक्सियम वर्ड पढ़ा है और एक जगह हमने पोस्टुलेट वर्ड पढ़ा है. ठीक है. सो वी हैव टू, सो इसीलिए अभी एकदम आराम से पोस्टुलेट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट पोस्टुलेट एंड एक्सियम. पोस्टुलेट और एक्सियम के बीच में कंफ्यूज मत हो. ठीक है. तो जस्ट लीव इट and don't go into Planck's length or anything because I don't have any idea about this physics. ये इसके बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है. So just don't go into technicality of
postulate or technicality of axiom, basically the both the things are postulate और axiom वो होता है जिसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। पहली चीज, इन रिजल्ट्स को अपन यूज करके वी डिराइव अदर थिंग्स। इन रिजल्ट्स को अपन यूज करके वी डिराइव अदर रिजल्ट्स। ठीक है, चलो देखो 5 postulates क्या है यूक्लिड महाराज के। पहला postulate है a straight line can be drawn from any point to any other point। दो पॉइंट्स के बीच में को अपन कनेक्ट करने के लिए अपन स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए we can draw a straight line to connect 2 points। ठीक है, next postulate is a terminated line or a line segment can be produced infinitely। ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स मुझे पता है। अब इस लाइन सेगमेंट को मैं इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूं जहां तक चाहूं। आई कैन एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शन, जहां तक मैं चाहूं वहां तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। नेक्स्ट इज ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ सेंटर एंड ऑफ एनी रेडियस। एक सर्किल को, कोई भी सर्किल है, उस सर्किल का कोई भी रेडियस और कोई भी सेंटर हो सकता है। सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी अगर राइट एंगल है, दैट इज 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 straight lines make an interior angle on the same side of it, taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of the angles are less than 2 right angles। इस postulate को समझने की कोशिश करते हैं because this is the 5th postulate and this is very important। This is the सर 5th। ये postulates तो सर सब बुक्स में अलग अलग दिए हैं। हाँ, लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट बट द आइडिया सर इज सेम। लैंग्वेज नहीं सर, पूरे एक्सियोम इज डिफरेंट सर। कौन से बुक की बात कर रहे हो आप? कौन से बुक में अलग दिया हुआ बेटा? सर स्कूल बुक्स में भी अलग है और जो रेफरेंस बुक में यूज करता हूँ ना सर, दिशा पब्लिकेशंस की, सर उसमें भी डिफरेंट है। See, I have not read about Disha publication or anything. I have just read 3 books. ठीक है, R.D. Sharma, then your study material that is being provided to you, and NCERT. My first thing is your study material and NCERT are basically the same। ठीक है, उसमें कोई कुछ भी different नहीं है। And for questions, I prefer to refer R.D. Sharma। इसके अलावा मैं कोई भी पब्लिकेशन की, किसी भी पब्लिकेशन की बुक को नहीं रेफर करता बिकॉज क्या होता है कि कई बुक्स में कई टाइप की चीजें होती हैं। और मेरा सजेशन आप लोग को भी यही है, डोंट ट्राई टू क्रिएट ए लाइब्रेरी इनटू योर होम। लाइब्रेरी मत क्रिएट करो, you will be unnecessarily confused। इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है। Just follow one book, that is NCERT, and the study material that is being provided to you। NCERT for theory and study material for practice, that's it। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो मल्टीपल रेफर कर सकते हैं ना। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कौन से सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करोगे फॉर आप, एग्जांपल देखो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ देखो फिजिक्स ले लिया तो सर बायो में तो हमें कंपलसरी रेफर करनी पड़ती है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स से अगर आप साइंस की बात कर रहे हो तो एक बुक आती है, आई थिंक मैंने तो पढ़ी थी, आज के टाइम पे आती है कि नहीं आती, लखमीर सिंह मंजीत कौर। ठीक है, आई थिंक लक्ष्मी पब्लिकेशन की सर आती है ना। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। सर आती है अभी भी। एसचन, हाँ, फ्रॉम एस चांद, नॉट फ्रॉम लक्ष्मी पब्लिकेशन, फ्रॉम एस चांद। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। काफी सालों से वो बुक चली आ रही है एंड काफी सालों तक वो बुक चलती जाएगी। हाँ सर ऑल इन वन भी है। नहीं अब ऑल इन वन के बारे में तो आई डोंट नो, बट दिस बुक इवन आई रेफर्ड, भी आती है टीवी में। दिस बुक इवन आई रेफर्ड, so this is one of the best book। ये लखमीर सिंह मंजीत कौर, it is one of the best book।
सो यू कैन रेफर, जहां पे आपको नहीं समझ में आता है वहां रेफर कर सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि नहीं आपको रेफर करना ही है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको रेफर करना ही है। चलो ये समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेट लाइन falling on two straight lines makes an interior angle on the same side of it taking together less than the two right angles। ठीक है, चलो देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो स्ट्रेट लाइंस पे फॉल करता है। अब ये फिर से बोलेगा कि सर बबल आ गया, रुक जा भाई, तेरे बबल भाग जा। हाँ ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो है, इफ इट इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस इट मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट मतलब ये वाला इंटीरियर एंगल अगर बनता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 1 एंड एंगल 2। नाउ व्हाट इट इज सेइंग इज if the sum of the interior angles is less than 180 डिग्री, अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइंस इफ दे आर प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली तो वो उस साइड पे मिलेंगी जहां पे सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि मान लो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम आता है, तो इन दोनों लाइंस को इनफाइनाइटली अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों लाइंस यहाँ पे कहीं आके मिलती हैं। ये इनके कहने का मतलब है। बस इस चीज को यूज करके जब अपन पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वी विल यूज देयर दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री। This concept we will use there. So this fifth postulate is very important. इसको आप लोग चाहो तो you can refer from other books also. This fifth postulate is very important. ठीक है, चलो। Now what we will be doing is we will be coming to the last topic. अब बताओ बेटा, यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे postulate की बात हो रही थी। Now they have used the term axiom. अब हो जाओगे कंफ्यूज, अब हो जाओगे कंफ्यूज। हाँ दर्श, यू आर सेइंग समथिंग, प्लीज गो। सर आप लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो थोड़ा, लास्ट में जो आपने बोला था। लास्ट में मैंने ये बोला था बेटा, अगर दो लाइंस हैं इस तरीके से और एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस यहाँ अगर इन और 180 डिग्री नहीं है और इन दोनों लाइंस को अगर आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों लाइंस यहाँ कहीं जाके मिलेंगी। इसका बस मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल 1 बन रहा है, एक एंगल 2 बन रहा है, एक एंगल 3 बन रहा है और एक एंगल 4 बन रहा है। जस्ट बाय कॉमन सेंस, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन के बाद भी या मेजरमेंट के बाद भी आप ये कह सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो लेस देन 180 डिग्री से, वो लेस देन 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये देखने से आपको ये लग रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। आप इसको मेजर करके भी बना सकते हो। तो इनके यूक्लिड ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री से कम है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं वो इस साइड में मिलेंगी, ना कि इस साइड में। यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, देयरफॉर द टू लाइंस, अगर मैं इसको साइड 1 बोलता हूँ, इसको साइड 2 बोलता हूँ, सो द टू लाइंस विल मीट ऑन साइड 2 ऑफ द side 2 of this transversal, not on side 1 of this transversal. This is what is the fifth postulate. ठीक है, next is Euclid's axiom. अब यहाँ पे देखो, now they have used the word axiom. Confusion है, कोई बात नहीं। The thing is basically that postulate is mainly, it is concerned for geometry. Axiom is for geometry and for non-geometry. आप फिलहाल इसको समझने के लिए आप इतना ही कह सकते हो कि postulate is mainly concerned for geometry and axiom is concerned for both for geometry and for not geometry. ठीक है, तो पहला axiom है
things which are equal to the same thing are equal to one another. अगर if A is equal to B is equal A is equal to B and C is equal to B, यहाँ से हम कह सकते हैं कि A is equal to C. This is postulate number 1. Postulate number 2 is if equal are added to equal, the wholes are added. कहने का इनका मतलब ये है कि if A is equal to B और अगर मैं A plus C करूं और मैं B plus C करूं, my dear friends, in that case A plus C will be equal to B plus C. This is postulate axiom number 2. Next, if equals are subtracted from equals. Sir, can we prove the axioms? No, you can't prove the axiom. If you want, you can say, you can try, but you can't prove the axiom. This I have been telling. The second बोलिए axiom that A plus C is equal to B plus C, we can prove that A plus C minus C is equal to B, then A. You just write and tell me, you just write and send me your proof, okay? I'll see and I'll tell you. I'll see and I will tell you. But you can't prove the axioms, okay? You just write your this proof and just send me. Next is, if equals are subtracted from equals, then the remainder is equal. That means if A is equal to B और आपने क्या किया, A minus C कर दिया, और अगर A minus C करोगे और यहाँ पे अगर B minus C है, so A minus C will be equal to B minus C. Please switch off your video. A minus C will be equal to B minus C. A minus C will be equal to B minus C. The next is, the thing which coincide with one another are equal to one another. The thing which are double of the same thing are equal to one another. मतलब ये कि अगर A है और एक हो गया मान लो B, so if A is equal to B, then 2 times of A will also be equal to 2 times of B. ये है इनका next axiom. The last axiom is, the things which are half of the same thing are equal to one another. If A is equal to B, then I will say A upon 2 will also be equal to B upon 2. A upon 2 will be equal to B upon 2. अगर कहने का इनका मतलब ये है, the what they want to say here is, अगर एक लाइन में अपन बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, अगर if A is equal to B, so अगर मैं A में कोई क्वांटिटी C को ऐड करूंगा, so A plus C will also be equal to B plus C if I'm adding equal thing to both of them. तो A plus C will be equal to B plus C. अगर मैं A और B से कुछ इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, in that case A minus C will be equal to B minus C. Next is, अगर मैं A को डबल करता हूं, if I double A, तो twice of A will be equal to twice of B. A by 2 will be equal to B by 2. ठीक है? These are the axioms that were given by Euclid. These are the axioms that were given by Euclid. और इन axioms को हम लोग जब आगे के chapters पढ़ेंगे, then we will be using. सर फिफ्थ वाला रह गया. फिफ्थ वाला 1 2 3 4 5, ये वाला the thing which is double of the same thing are equal, नहीं, the whole is greater than the part. कहने का इनका मतलब ये है कि मान लो जैसे एक लिखा हुआ है 5, एक लिखा हुआ है 5 और एक लिखा हुआ है 0.6, so 0.6 is 3 divided by 5. तो इनका यही कहने का मतलब है कि this 5 will be greater than this 3 upon 5. This is what he has tried to explain in that axiom. This 5 will be greater than 3 upon 5. Fourth one is, 1 2 3 4. The thing which coincide with one another are equal to one another. Coincide with one another means एक लाइन ये है, सपोज करो एक लाइन ये है और
एक लाइन ये है सपोज करो, और अगर मैं दूसरी लाइन दूसरे पेन से बनाता हूँ से इससे, इसके ऊपर एक लाइन है ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन आपको दिख रही होगी, एक लाइन ये है और इसके ऊपर एक लाइन ये है, तो दीज टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, दैट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये दोनों लाइंस एक मिनट, ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी। याद करो जब अपन जब अपन इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है, एक लाइन ये होती है और दूसरी लाइन एक ऐसी होती है, दोनों लाइंस क्या, अब मैंने आपको 3 टाइप की इक्वेशंस बताई थी, 3 केसेस होते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन के लिए। वन केस वाज जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हुए जा रही हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? सर पर लाइंस का तो हमें लेंथ पता नहीं है, डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट हाँ है, तो नहीं, तो एक कोइंसाइड नहीं करे, कोइंसाइड मतलब करने नहीं, देखो करेगी, कोइंसाइड अगर इन्होंने बोल दिया है, दैट मींस द लाइंस विल जस्ट बी वन ओवर अनदर, वो उनकी लेंथ कुछ भी हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, इनफाइनाइट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कोइंसाइड बोल दिया तो इट विल ऑलवेज बी वन ओवर अदर, दैट्स इट। उसकी लेंथ से ऐसा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर तक कोइंसाइड करेगी उसके बाद कोइंसाइड नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, इट विल ऑलवेज बी वन ओवर अदर, ठीक है सर ये लास्ट 2 वाले उनमें से कोई भी ऑपरेशन करे तो सेम ही रहेंगे ना? हाँ, वो कोई भी ऑपरेशन करे तो सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज इंसिडेंस एक्सियम। A line is a collection of infinite number of points, ठीक है। इंसिडेंस एक्सियम करके एक इन्होंने एक्सियम दिया था हमारे यूक्लिड में, पहले उसमें क्या है, ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सेकंड, A line is a collection of infinite number of points, पहली चीज। दूसरी चीज ये, थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ऐसे ड्रॉ कर दो, 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 ये कर दो, वो कर दो। लास्ट 5 मिनट्स में सर आपने क्या समझा? सर मैं डिस्कनेक्ट। just watch the recordings, it's not possible for me to repeat it, I'm sorry, just watch the recordings, ठीक है। तो लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो लाइन जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। थ्रू ए गिवन पॉइंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉ, किसी भी पॉइंट से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ऐसे 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 करके ड्रॉ कर सकता हूँ। थर्ड थिंग इज, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से मैं एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये बात याद करो जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि बेटा ग्राफ बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ही जरूरत है। सो दिस इज फ्रॉम दिस इंसिडेंस एक्सियम। क्या है इंसिडेंस एक्सियम? देखो बेटा, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस कर सकती है जो उन दोनों पॉइंट्स को कंटेन करे। ऐसी कोई दूसरी लाइन हो ही नहीं सकती जो इस पॉइंट से भी पास करे और इस पॉइंट से भी पास करे, इट्स नॉट पॉसिबल। यही चीज मैंने उस दिन आप लोग को बताई थी जब अपन ग्राफ बनाना सीख रहे थे, कि अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए तो आप ग्राफ बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सियम। इफ P is a point outside a line L, then only one line can be drawn through P which is parallel to L. अगर कोई पॉइंट P है, अगर एक कोई लाइन L है मान लो इस तरीके से, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अब ये तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास, बट among all these infinite number of lines there will be only one line passing through P that will be parallel to L. There will be only one line passing through P that will be parallel to L.
एंड और दूसरा यहां से है, यहां से एक चीज और अपन बोल सकते हैं, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो दोनों लाइंस किसी भी तीसरी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट टू से दैट इफ सपोज करो दिस इज ए लाइन, ठीक है, दिस इज ए लाइन एल, फाइन, और एक लाइन यहां पे है, से दिस लाइन इज एम, ठीक है, और एम से इंटरसेक्टिंग एक लाइन है एल, एन। नाउ आई नो दैट एल इज पैरेलल टू एम, एंड ये एम और एन जो है, एम एंड एन आर इंटरसेक्टिंग, सो मैं ये नहीं कह सकता कि n is parallel to L. This statement is wrong. N is parallel to L. This statement is absolutely incorrect. This statement is absolutely wrong. क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो n वाली लाइन है, ये जो n वाली लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, एटलीस्ट अर्थ पे तो नहीं हो सकती। एक मिनट, एटलीस्ट अर्थ पे तो नहीं हो सकती, कहीं और होगा तो मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। सर ये एक्सियम कहाँ कहलाएंगे? इनको तो ऐसे ही ड्रॉ करके तो बता ही सकते हैं ना, प्रूव भी कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं करे, मतलब करेंगी इंटरसेक्ट। कैसे प्रूव करोगे बेटा, करेंगी कि नहीं करेंगी? सर उसको एक्सटेंड ही कर सकते हैं ना, लाइन को पता चल जाएगा बाद में। कहां तक एक्सटेंड करोगे? मैं बोलूंगा कि तुम वहां तक एक्सटेंड करो, उसके आगे कहीं प्रूफ हो जाए तो, अगर आगे कहीं एक्सटेंड हो जाए तो? Okay, somebody is saying if the point was proved, then these axioms would also have been proved. हाँ, अगर पॉइंट को आप प्रूफ कर सकते थे कि ये पॉइंट है तो आप इन एक्सियम्स को भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन जब आप पॉइंट को ही नहीं बता पाए कि पॉइंट क्या है, बेसिकली योर होल ज्योमेट्री is based upon something that is not defined. This is an irony that पूरी की पूरी ज्योमेट्री एक ऐसी चीज पे बेस्ड है जिसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं है। लेकिन ठीक है, हमको उस डेफिनेशन से वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ना, उस डेफिनेशन का मेरे को क्या करना है, आई नॉट कंसर्न अबाउट दैट डेफिनेशन, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द concepts. So this was all about this chapter today. This was all about this chapter.